Bluetooth. So today we'll see what is Bluetooth. We all know Bluetooth is a wireless technology. Bluetooth is a wireless technology. So with Bluetooth is a wireless technology, so we can connect telephones, computers. Computers is either laptop or desktop. There's cameras, printers, and so on. For example, we can connect with the help of Bluetooth. We can connect keyboard, mouse, right? And then headphones. This all we can connect with this technology, Bluetooth, because it is a wireless LAN technology. We all know that अभी देखो wireless keyboard आते हैं, wireless mouse आते हैं, तो क्या है, that is the which technology? Bluetooth wireless LAN technology. Okay, Bluetooth wireless LAN technology. So nowadays Bluetooth technology used for several computers and non-computer applications also. Computer applications means that computer devices like keyboard, mouse, headphones. And non-computer applications means, yes, wireless charger also, right? Non-computer application means various applications are also there. In that application, Bluetooth technology is used, okay, to share data. That is non-computer application. So now we will see uh, Bluetooth architecture. Okay, Bluetooth architecture. Bluetooth architecture is of two types: Piconet and Scatternet. Piconet and Scatternet. Okay. So what is Piconet? Piconet means it is a network. Piconet क्या है? It is a Bluetooth network जिसमें एक प्राइमरी स्टेशन होता है, प्राइमरी, और यू कैन से मास्टर, प्राइमरी और मास्टर. Okay. So one primary station and 7 secondary station. One primary station, 7 secondary station. So primary is also known as master. Secondary is also known as slave. Primary means master. Secondary means you can say slave also. The one primary station and 7 secondary station. Okay. तो उसको हम लोग बोलते हैं पिकोनेट नेटवर्क. किसको पिकोनेट नेटवर्क बोलते हैं? जहां पे वन प्राइमरी स्टेशन होता है एंड 7 सेकेंडरी स्टेशन होते हैं. ओके. तो पिकोनेट में कितने नोड्स होते हैं? टोटल 8 नोड्स. हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन पिकोनेट नेटवर्क? टोटल 8 नोड्स. हाउ 8 नोड्स? वन प्राइमरी स्टेशन है एंड 7 सेकेंडरी स्टेशन है. तो टोटल 8 एक्टिव नोड्स आर प्रेजेंट इन पिकोनेट नेटवर्क. और पिकोनेट का जो रेंज है, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल रेंज, बिकॉज डिस्टेंस ओनली 10 मीटर्स. तो डिस्टेंस कितना होता है नेटवर्क का, पिकोनेट नेटवर्क का? 10 मीटर्स ओनली. ओके. तो कम्युनिकेशन कैसा होगा? प्राइमरी स्टेशन मीन्स मेन स्टेशन जो है, मास्टर स्टेशन. तो कम्युनिकेशन बिटवीन प्राइमरी स्टेशन एंड द सेकेंडरी स्टेशन can be one to one and one to many. One to one means direct communication. For example, see this figure. Here 5 secondary stations are there. 5 na? No. 4 stations. One primary station and 4 secondary station. So one to one communication means, let's give this name. First station is A, secondary station A, B, C, D. One to one communication means this primary station is communicating directly with secondary A station. Okay, that is one to one. One to many means ये प्राइमरी स्टेशन जो सिंगल है, मोर देन वन सेकेंडरी स्टेशन से कम्युनिकेट कर रहा है एट ए टाइम. दैट इज वन टू मेनी कम्युनिकेशन. वन टू मेनी कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन वन टू वन भी हो सकता है, इसमें वन टू मेनी भी हो सकता है. वन टू वन मीन्स अगर डायरेक्टली प्राइमरी स्टेशन कुछ डेटा भेज रहा है ओनली स्टेशन ए को, दैट इज वन टू वन. अगर मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन को भी डेटा भेज सकता है प्राइमरी स्टेशन, मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन को, दैट इज वन टू मेनी कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन दोनों वे में पॉसिबल है इसमें, आइदर वन टू वन और वन टू मेनी. ओके. हाँ, वन थिंग वी हैव टू सी हियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन जो है, इट इज कैन बी वन टू वन और वन टू मेनी, राइट? Communication, all communication is between master and slave only. That means slave
slave communication is not possible. स्लेव स्लेव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है. कम्युनिकेशन किसके बीच में पॉसिबल है? मास्टर एंड स्लेव, मास्टर एंड स्लेव. स्लेव स्लेव कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, नाउ सी, we know that in Piconet network range बहुत shorter range है up to 10 meters से, right? तो 10 meters range है. and one more thing कि 7 इसमें active slave node से, active slave node से. secondary station, primary प्राइमरी स्टेशन मीन्स मास्टर, सेकेंडरी स्टेशन मीन्स स्लेव. जैसे हमारा प्राइमरी स्टेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो डेटा जहां से इनिशिएट होता है, वी हैव सीन, कौन सा टॉपिक था वो? टोकन पासिंग, नॉट टोकन पासिंग, पॉलिंग. पॉलिंग याद आ रहा है? पॉलिंग जिसमें टू फंक्शंस होते हैं, पॉल फंक्शन एंड सिलेक्ट फंक्शन. तो पॉलिंग में कैसा होता है? प्राइमरी स्टेशन होते हैं, सेकेंडरी स्टेशन होते हैं. ऑलवेज प्राइमरी स्टेशन ही इनिशिएट करेगा, इनिशिएट करेगा. अगर इफ द प्राइमरी डिवाइस वांट्स टू सेंड द डेटा और रिसीव द डेटा, कुछ भी होने दो, प्राइमरी डिवाइस को आइदर सेंड करना है डेटा, ये रिसीव करना है डेटा, पर इनिशिएट जो है प्राइमरी डिवाइस ही करेगा. जस्ट लाइक दैट इसमें भी ऐसी है. एक मेन मास्टर नोड हम लोग बोलेंगे, और यू कैन से प्राइमरी, और जो बाकी के जो कनेक्टेड है प्राइमरी से वो सेकेंडरी है. तो प्राइमरी डिवाइस से ही कम्युनिकेशन होगा हमेशा स्लेव की सेकेंडरी स्टेशन से. स्लेव स्लेव नहीं कर सकते. ओके, तो यहाँ पे देखो 7 एक्टिव स्लेव स्टेशन है. स्लेव मीन सेकेंडरी स्टेशन, स्लेव मीन सेकेंडरी स्टेशन. सेकेंडरी स्टेशन किससे कनेक्टेड होते हैं? प्राइमरी स्टेशन से कनेक्टेड होते हैं. ओके, तो 7 कितने? 7 एक्टिव स्लेव स्टेशन है, मीन 7 एक्टिव सेकेंडरी स्टेशन है. पिकोनेट नेटवर्क में 255 पार्क्ड नोड्स होते हैं. 255 पार्क्ड नोड्स मींस इनएक्टिव स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट में 255 नोड्स प्रेजेंट रहते हैं. मतलब प्रेजेंट रहते हैं मींस कैन हैव अप टू 255 इनएक्टिव नोड्स मैं रख सकती हूँ. समझ रहे हो? पिकोनेट नेटवर्क में 255 इनएक्टिव, नॉट एक्टिव, इनएक्टिव नोड्स हम लोग रख सकते हैं. और एक्टिव कितने हो सकते हैं? 7. मतलब एट ए टाइम ओनली 7 नोड्स एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रह सकते हैं इन पिकोनेट नेटवर्क. इनएक्टिव स्टेट में कितने नोड्स रह सकते हैं प्रेजेंट? 255. दैट इज द कंडीशन. ओके, तो ये पार्क नोड्स जो है, मतलब जो इनएक्टिव स्टेट में जो नोड्स प्रेजेंट है, लोग कम्युनिकेशन में पार्ट नहीं ले सकते जब तक पार्क स्टेट से वो एक्टिव स्टेट में नहीं आ पाए. ठीक है. तो सेकेंड टाइप ऑफ नेटवर्क इज स्कैटरनेट. स्कैटरनेट, स्कैटरनेट कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ पिकोनेट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पिकोनेट इज स्कैटरनेट. ओके, लाइक दिस. सी, ये पिकोनेट 1 है. पिकोनेट 1 मींस यहाँ पे सीरीज फिगर, एक प्राइमरी स्टेशन है और सेवरल सेकेंडरी स्टेशन है. ये सेकेंड पिकोनेट नेटवर्क है. पिकोनेट 2, 1 primary station and more than 1 secondary station is there. So what is scatternet? Combination of various piconet. Combination of various piconet is scatternet. Okay, तो ये piconet 1 and piconet 2 को we are combining here, तो क्या बन जाएगा? scatternet. scatternet बन गया. ओके, ये पिकोनेट और ये पिकोनेट का मतलब 2 नेटवर्क we are combining, 2 Bluetooth network, 2 wireless LAN technology we are combining, so that becomes scatternet. scatternet. ओके, तो कैसे बनता है वो? आज स्लेव इन 1 पिकोनेट. अभी यहाँ पे देखो, इसका एक स्लेव, पिकोनेट 1 का जो स्लेव है, स्लेव नंबर C, इसको C दे दो. ठीक है. A slave in 1 piconet can act as a master or primary in other piconet. मतलब एक पिकोनेट नेटवर्क का जो स्लेव है ना, वो दूसरे नेटवर्क के लिए ऐसा कंपल्सरी नहीं कि दूसरे नेटवर्क के लिए वो स्लेव भी बनेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? A slave in 1 piconet
कैन एक्ट एज ए मास्टर और प्राइमरी इन अदर पिकोनेट। मतलब वो जो स्लेव है एक पिकोनेट का, दूसरे नेटवर्क के लिए वो मास्टर बन सकता है। मास्टर और प्राइमरी एक ही वर्ड है यहाँ, मास्टर और प्राइमरी इन अदर पिकोनेट। ठीक है, नाउ सी, a station cannot be a member of two piconet. ये point we don't need to consider. A station cannot be a master in two piconets. अभी यहाँ पे देखो, such a station or node can receive messages from the master. यहाँ पे ये फिगर में देखो, फर्स्ट पिकोनेट में जो मेरा मास्टर है, मतलब प्राइमरी डिवाइस है, प्राइमरी डिवाइस क्या करेगा, मैसेज डिलीवर करेगा अपने स्लेव्स को। प्राइमरी डिवाइस क्या करेगा, will deliver messages to its slaves. ठीक है, to its slaves in other piconet where it is acting as master. मगर स्लेव जो है दूसरे नेटवर्क में कैसे एक्ट कर रहा है, वो मास्टर नोड बन गया। दिस नोड इज कॉल्ड ब्रिज स्लेव। जो स्लेव दूसरे नेटवर्क का मास्टर नोड बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वो ब्रिज स्लेव है, ब्रिज, बिकॉज वो दूसरे में जा रहा है, ब्रिज है। समझ रहे हो, ब्रिज स्लेव किसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा स्लेव जो दूसरे नेटवर्क में मास्टर बन जाता है, मास्टर नोड, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज स्लेव। दैट नोड, नोड मीन्स डिवाइस ओनली, ओके, तो दैट नोड इज कॉल्ड ब्रिज स्लेव, ब्रिज। तो यहाँ पे यू कैन से, मतलब कैन यू से दिस व्हाट इज, मतलब which one of the following is the bridge slave, from these which one is bridge slave, this one is bridge slave, right? क्यों ये ब्रिज स्लेव है, बिकॉज ये जो सेकेंडरी स्टेशन है, ये वाला स्टेशन दूसरे स्टेशन में प्राइमरी स्लेव बना है, so that node is called as bridge slave, bridge. Okay, so okay, now see, two types of architecture is there in Bluetooth, piconet and scatternet, piconet and scatternet. तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा स्कैटरनेट का, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ स्कैटरनेट? लाइक सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है, तो वो सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स होती है, लाइक कोई भी साइट्स हो दो, फेसबुक हो गया, ये इंस्टा और एनी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है हमारा, वो स्कैटरनेट का एग्जांपल है। स्कैटरनेट मतलब डिफरेंट जो नेटवर्क्स होते हैं ना, डिफरेंट जो नेटवर्क्स है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा फेसबुक का एक प्राइमरी स्टेशन है, सर्वर है, ठीक है, और उसके स्लेव्स कौन है, हम लोग है। लेट अस कंसीडर हम लोग स्लेव्स है, वी आर द यूजर्स। ठीक है, जो फेसबुक का सर्वर में जो डेटा है हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज फेसबुक सर्वर नोड एंड दिस इज यूजर्स स्लेव नोड। अभी ये जो स्लेव है, समझो लेट अस कंसीडर ये ज्योति है, ओके। तो ज्योति क्या कर रही है, फेसबुक में ये स्लेव नोड है, ज्योति, ज्योति यूजर है। तो ज्योति क्या कर रही है, दूसरे इसमें जाके, दूसरे नेटवर्क, अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, लाइक इंस्टाग्राम और एनी अदर साइट में, वो मास्टर नोड का काम कैसे कर रही है। इफ ज्योति इज क्रिएटिंग एनी पेज ऑन फेसबुक, जैसे उसने कुछ न्यू क्रिएट करी, एनी फेसबुक पेज शी हैज क्रिएटेड, और कोई कुछ और चीज उसने क्रिएट करी, फिर वहां पे अपने पेज में शी हैज स्टार्टेड अपलोडिंग सम यूजफुल कंटेंट, ओके, तो वो तुम्हारा मास्टर नोड बन गया। क्या बन गया, मास्टर नोड, बिकॉज वहां से इंस्ट्रक्ट होके जो भी वो पेज से कनेक्टेड हो जाएंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के, तो वो स्लेव बन जाएंगे उसके। आर यू गेटिंग दिस? तो दो नेटवर्क, दो डिफरेंट नेटवर्क, एक फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्कैटरनेट, स्कैटरनेट। हाउ स्कैटरनेट इज फॉर्म, combination of various piconet, combination of various piconet। सी पिकोनेट का मीन, जो पिको का मीनिंग है, PICO, PICO, तो विच मीन्स स्मॉल,
पिकोनेट में जो पिको है, इससे याद रखना है, पिको मीन्स वेरी स्मॉल, बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ डिवाइसेस है वो लिमिटेड है। नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या है, लिमिटेड है। ओके, और उसका जो रेंज भी है वो डिस्टेंस अप टू 10 मीटर्स ही है। तो पिको मीन्स वेरी स्मॉल, पिको मीन्स वेरी स्मॉल। इज इट क्लियर? पिकोनेट एंड स्कैटरनेट। कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ पिकोनेट? कोई एग्जाम्पल पिकोनेट का दे सकते हो? सी पिकोनेट क्या है? example we can give one master node and seven slave stations, right? Or secondary station. The example of piconet means your cell phone. Okay, हमारा सेल फोन अगर कंप्यूटर से कनेक्टेड है या लैपटॉप से कनेक्ट है और उसमें ब्लूटूथ या ब्लूटूथ अनेबल्ड हमारे पास कोई कैमरा है या कीबोर्ड है, तो दैट इज पिकोनेट। पिकोनेट हो गया। बिकॉज पिकोनेट में जो डिवाइसेस होते हैं ना, डिवाइसेस जो मतलब पिकोनेट मीन समझ जाओ, एक मास्टर नोड है, सेवन सेकेंडरी स्टेशन से। तो पिकोनेट में जो डिवाइसेस प्रेजेंट है ना, दे आर शेयरिंग दी सेम चैनल, सेम चैनल शेयर करते हैं लोग। ठीक है, तो अगर मैं अपना सेल फोन कनेक्ट कर रही हूँ कंप्यूटर से, दैट इज पिकोनेट। तो ऐसा कंपल्शन नहीं है हाँ, कि 7 ही होगा तो पिकोनेट है। अगर मैंने अपना अभी एक सिंगल सेल फोन जो है, मैंने आई हैव कनेक्टेड विद कंप्यूटर, तो वो भी पिकोनेट नेटवर्क ही बन गया। ठीक है, तो पिकोनेट सी सिंपली वी कैन से दैट पिकोनेट एक स्मॉल नेटवर्क है जहाँ पे डिवाइसेस मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, इट कवर्स स्मॉल एरिया, collection of devices via Bluetooth technology. Okay, a collection of devices connected via Bluetooth technology, connected via Bluetooth technology. जो भी devices Bluetooth technology से connected है, that is Piconet network. What is the advantage of Piconet and Scatternet? Advantage क्या होगा इसका? ये कॉमन एडवांटेज इसका ये है कि ये it allows many devices to share the same physical area, means they are sharing the same channel, right? So means they are sharing the same physical area. अभी एक नेटवर्क है, वो लोग सेम फिजिकल एरिया शेयर कर रहे हैं, मतलब एक ही ब्लूटूथ क्या है, एक रेंज का मतलब एक रेंज को कवर करता है ब्लूटूथ, राइट? एक लिमिटेड रेंज तक होता है ब्लूटूथ वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी जो है, उसका एक लिमिटेड रेंज होता है। मीन्स वो जो रेंज है उसका जो फिजिकल एरिया है वो तो सेम ही रहेगा ना, राइट? जितने भी डिवाइसेस है, जितने भी डिवाइस है, मेरा कीबोर्ड ब्लूटूथ से कनेक्ट है, माउस कनेक्टेड है या हेडफोन कनेक्टेड है, ठीक है, तो जो ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी है, दे आर यूजिंग दी सेम फिजिकल एरिया, दे आर यूजिंग दी सेम फिजिकल एरिया। तो फिजिकल एरिया मीन्स दे आर यूजिंग सेम फिजिकल एरिया मीन्स एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का एफिशिएंट यूज हो रहा है, राइट? अभी एक चैनल है, जो भी एक चैनल है उसका बैंडविड्थ होता है, राइट? तो बैंडविड्थ का एफिशिएंट यूज हो रहा है, मींस बैंडविड्थ इक्वली शेयर हो रहा है जितने भी डिवाइसेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर सेवरल डिवाइसेस है तो दैट मींस बैंडविड्थ मेरा एफिशिएंट यूज हो रहा है, मींस अच्छे से यूज हो रहा है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ नहीं हो रहा है।
राइट? दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, पिकोनेट में व्हाट इज पिकोनेट और व्हाट इज कैटनेट. इट इज वेरी सिंपल, कुछ हार्ड नहीं है इसमें. See this figure, this one. देखो, दिस लैपटॉप और कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप और कंप्यूटर. तो विथ लैपटॉप और कंप्यूटर वी कैन कनेक्ट डिजिटल कैमरा और वी कैन कनेक्ट सेल फोन ऑल्सो. देन हमारा इंटरनेट कनेक्शन जो मॉडम है, लाइक हमारा राउटर, ओके, राउटर और मॉडम. देन पीडीए, और यहाँ पे सेल फोन दिया है, प्रिंटर दिया है, 2-3 सेल फोन से प्रिंटर है. तो ये क्या है? पिकोनेट है. पिको नेटवर्क बन गया. अगर मैं अपने एक डिवाइस से, अच्छा कैन यू से इसमें से मेरा प्राइमरी नोड कौन सा है? विच वन इज प्राइमरी नोड? सबको लेबलिंग दिया है यहाँ पे ना. तो विच वन इज प्राइमरी नोड इन दिस फिगर? विच वन इज प्राइमरी नोड? दिस इज पिकोनेट फिगर. दिस इज पिकोनेट फिगर. विच वन इज प्राइमरी नोड? यस राइट, अरुण सरफराज. लैपटॉप. लैपटॉप मेरा प्राइमरी नोड है. और जो लैपटॉप से जो डिवाइसेस मैंने कनेक्ट की, कीबोर्ड होने दो, माउस होने दो, या प्रिंटर है, या सेल फोन है, या मेरा इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम है और स्विच है, और वो ये सब जो कनेक्टेड है ना, तो मैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ. आई एम यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. तो वो मेरा पिकोनेट नेटवर्क बन जाएगा. एक थिंग ये हो गया. सेकेंड थिंग ये है, अगर 7 है, 7 के ऊपर नहीं है, 7 के ऊपर नहीं, अगर 7 एक्टिव स्टेशन है तो वो पिकोनेट नेटवर्क है. ठीक है? तो लैपटॉप, सी इन दिस एग्जांपल द लैपटॉप एक्ट एज ए मास्टर. द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ पे रन हो रहा है? लैपटॉप पे, जो कनेक्ट कर रहा है सेल फोन को और जितने भी डिवाइसेस जो है. ठीक है? तो सिंगल पिकोनेट कैन हैव अप टू 8 डिवाइसेस. 8 डिवाइस हो सकता है. 8 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8. 7 सेकेंडरी स्टेशन एंड 1 प्राइमरी स्टेशन. ओके. So now see this topic. What is virtual LAN? We all know what is LAN, right? Yes, 7 piconet only. 7 active, not 7 piconet, 7 active stations. 7 active, 7 secondary stations. Piconet can have up to 8 active nodes. A piconet can have up to 8 active nodes only. 8, वो condition है. 8. 8 means 1 primary station and 7 secondary station. और इनएक्टिव नोड्स कितने हो सकते हैं उसमें? 255. तो इनएक्टिव नोड्स को हम लोग पार्क्ड, PRKD, पार्क्ड नोड्स बोलते हैं. ओके. तो पिकोनेट का मीनिंग क्या है? पिको मीन्स वेरी स्मॉल. पिको मीन्स वेरी स्मॉल. नेट मीन्स नेटवर्क. सी, पिको मीन्स वेरी स्मॉल. पिको का मीन्स है वेरी स्मॉल. नेट मीन्स नेटवर्क. तो उसका मीनिंग क्या बन गया? वेरी स्मॉल नेटवर्क. very small network. Pico means very small, net means network. So very small network. Why it is very small network? Because इसमें devices ही 8 active devices ही हो सकते हैं. That's why इसका name piconet दिया गया. और distance भी up to 10 meters ही है, इसलिए इसको piconet बोलते हैं. Piconet बोलते हैं means very small network. Is it clear now, Jyoti? Is it clear? पिकोनेट का मीनिंग याद रखो, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल नेटवर्क. इट मस्ट यूज 7 years. 7, not 7, not मतलब it is not mandatory that compulsory if you're using 7 तो पिकोनेट होगा. can have up to 7, can have up to 7, that is a maximum limit.
7 is the maximum limit. 7 secondary station is the maximum limit. Okay. 1 भी हो सकता है, 1 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी भी हो सकता है. Okay. 7 active secondary stations, or you can say 7 active slave station. सेकेंडरी और स्लेव एक ही है, याद रखो. सेकेंडरी और स्लेव इट इज सेम ओनली. तो 7 एक्टिव सेकेंडरी स्टेशन और 7 एक्टिव स्लेव स्टेशन, ठीक है, वो प्रेजेंट मतलब कैन हैव, उतने हो सकते हैं. दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट. दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट. ओके. इट इज क्लियर नाउ ना. सो लेट्स सी वर्चुअल लैन. व्हाट इज वर्चुअल लैन? तो वर्चुअल लैन स्टार्ट करने से पहले लैन क्या होता है? तो लैन हम लोग को पता है ना. लैन का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट फुल फॉर्म ऑफ लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क. ओके. तो लैन हम लोग को पता है इट इज अ स्मॉल एरिया नेटवर्क. ठीक है. इट इज अ स्मॉल एरिया नेटवर्क जो कहाँ पे चलता है? कैंपस. कैंपस कनेक्शंस में, बिल्डिंग में. अप टू उसका रेंज 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर अप्रोक्स. वी कैन से एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हम लोग. अप टू 10 किलोमीटर बोल सकते हैं. ओके. और उसका स्पीड भी जो है लैन का 10 Mbps टू 100 Mbps तक की स्पीड है. नाउ व्हाट इज वर्चुअल लैन? वर्चुअल लैन क्या होता है? सी व्हाट इज वर्चुअल लैन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल? तो वर्चुअल का मीनिंग ये होता है, अगर हमारा कंप्यूटर जो है, ठीक है, इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ कंप्यूटर्स दैट इज लॉजिकली सेगमेंटेड बाय फंक्शंस, प्रोजेक्ट टीम्स और applications without regarding to the physical location of users. मीन्स अगर कंप्यूटर्स जो है वो लॉजिकली, not physically, हाँ. I will give example here so you will get clear idea. तो फर्स्ट थिंग पहले इसका डेफिनेशन समझो. लॉजिकली कंप्यूटर्स मेरा लॉजिकली मतलब सेगमेंट में डिवाइड हुआ है उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग. जैसे फॉर एग्जांपल 10 डिवाइसेस कनेक्टेड है. यस यस राइट. नॉट फिजिकली एग्जिस्टिंग. अरुण ने एक स्टेटमेंट लिखा है इन द चैट बॉक्स. नॉट फिजिकली एग्जिस्टिंग as such but made by software to appear to do so. Yes, right statement है ये. तो लॉजिकली वो डिवाइड हुआ है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. सबके अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग कि तुम्हारा फर्स्ट पार्टीशन जो है उसका ये फंक्शन है, सेकंड पार्टीशन का ये फंक्शन है. ओके, लाइक दैट. और एप्लीकेशन विदाउट रिगार्ड टू द फिजिकल लोकेशन ऑफ यूजर्स. So now see, we can take example here, so you will get clear idea what is a virtual LAN. Virtual LAN applications. Okay, virtual LAN application. तो बहुत सारे एप्लीकेशन है वर्चुअल लैन के. सी वर्चुअल लैन क्या करता है? इट अलाउज, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टली किससे कनेक्ट नहीं है, अपने होस्ट से कनेक्टेड नहीं है, पर फिर भी वो ऑपरेट कर पा रहा है डिवाइस को. फिर भी वो डिवाइस को ऑपरेट कर पा रहा है. ओके. तो बहुत सारे उसके लिए एप्लीकेशंस है. एप्लीकेशंस के नेम हम लोग को याद नहीं रखना है, बट फॉर एक्सप्लेनिंग ओनली आई एम सेइंग एप्लीकेशंस नेम. कौन से गेम रेंजर, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है. गेम रेंजर है, जीरो टायर एप्लीकेशंस, देन फ्री लैन एप्लीकेशंस. तो ये एप्लीकेशन यूज करके तुम क्या कर सकते हो? डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकते हो रिमोट लोकेशंस के थ्रू. मतलब तुम प्रेजेंट नहीं हो. लाइक वीएमवेयर. वीएमवेयर जो है हमारा वो वर्चुअल लैन का एग्जांपल है ना. व्हाट इज वीएमवेयर? कुछ आइडिया है किसी को? व्हाट इज वीएमवेयर? जी.
एग्जाम्पल, सी वीएम वेयर क्या है हमारा? वीएम मीन्स वर्चुअल मशीन, वीएम मीन्स वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो वीएम मीन्स वर्चुअल मशीन है वीएम वेयर। तो वीएम वेयर जो सॉफ्टवेयर है उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट वर्चुअल मशीन ऑन अर कंप्यूटर। वर्चुअल मशीन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में। ओके, ठीक, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आई विल गिव। अगर तुमको मल्टीपल, नाउ आई एम यूजिंग विंडोज 10, राइट, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर तुमको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम तुमको अपने सिस्टम में यूज करना है, ठीक है। समझो मुझे विंडोज भी यूज करना है और मेरे यही सिस्टम में लिनक्स भी यूज करना है। लिनक्स इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। तो मुझे दोनों यूज करना है, विंडोज भी और लिनक्स भी। तो मैं व्हाट आई विल डू, वीएमवेयर एक सॉफ्टवेयर है, वीएमवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ओके। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल एप्लीकेशन अपने सिस्टम में रन करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम तुम इंस्टॉल कर सकते हो पार्टीशंस क्रिएट करके, पार्टीशंस क्रिएट करके यू कैन इंस्टॉल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यू विल लर्न इन टीवाई, टीवाई में जब जाओगे लिनक्स है तो वहां पे यू विल इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर वीएमवेयर। वीएमवेयर इंस्टॉल करेंगे तो अपने विंडोज को निकालेंगे नहीं अपने सिस्टम में से, ठीक है। वीएमवेयर इंस्टॉल करके वी विल क्रिएट पार्टीशन फॉर द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। Virtualization and what is Irshad is writing? Virtualization and cloud computing software.